چائنا موجودہ دور میں دنیا میں سب سے تیزی کے ساتھ ترقی کرنے والا دیش۔ اب اس بات میں کوئی بھی شک نہیں رہ گیا ہے، مطلب سارے ہی ایکسپرٹس کھل کر یہ بات کہنے لگے ہیں کہ اگر چائنا اسی سپیڈ کے ساتھ اور اسی خاموشی کے ساتھ آگے بڑھتا رہا تو وہ دن دور نہیں کہ جب ہم چائنا کو ہر معاملے میں ٹاپ پر دیکھیں گے، مطلب اس کو سپر پاور بننے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ کیونکہ چاہے بات اکانومی کی ہو، ملٹری کی ہو، ملٹری میں بھی ایئر فورس ہو، نیوی ہو، لینڈ آرمی ہو، ہر معاملے میں ہی چائنا کی گروتھ بے مثال نظر آتی ہے۔ لیکن ایک منٹ، جیسا کہ ہم سبھی یہ بھی جانتے ہیں کہ آج کے دور میں تو سپر پاور ہونے کے لیے یہ ساری چیزیں بھی کافی نہیں ہیں، بلکہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ایسی چیز ہے کہ جو ان سے بھی زیادہ اہم اور ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ ایون آنے والے دور میں پوری دنیا پر راج کر ہی وہی سکے گا کہ جس کے پاس یہ اہم چیز موجود ہوگی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ اہم چیز کیا ہے، اور اس میں بھی چائنا پوری دنیا کو کس طرح سے حیران کر رہا ہے، اور اس پورے معاملے میں اس اہم چیز میں چائنا میں رہنے والے جو مشہور اوئیگر مسلمان ہیں ان کا کیا اینگل ہے؟ ان سارے ہی سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں۔ آرچ نیٹورک کے نالجبل فرینڈ، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جس طاقت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ کچھ اور نہیں بلکہ سائبر وارفیئر ہے، مطلب کہ ہیکنگ کی دنیا، کہ جس کے ذریعے سے دنیا کی کوئی بھی طاقت بنا کوئی میسائل چلائے، بنا کوئی گولی چلائے، ایون اپنی فوج کو میدان پر اتارے بغیر ہی بڑی سے بڑی دشمن طاقت کو پوری طریقے سے مٹی میں ملا سکتی ہے۔ سائبر وارفیئر کے ذریعے سے کیا ہو سکتا ہے اور فیوچر میں کیا کیا ہونے لگے گا، اس کا ٹریلر ہم لوگ آلریڈی رشیا یوکرین یا اسرائیل اور ایران جیسی جنگوں میں دیکھ بھی رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں دنیا میں جتنی بھی بڑی بڑی طاقتیں ہیں وہ اس فیلڈ میں پوری شدت کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اور انٹرسٹنگلی یہاں پر بھی چائنا کسی سے پیچھے کھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ سائبر وارفیئر میں بھی اس نے دنیا کے ہوش اڑا رکھے ہیں۔ ساتھیو، اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو بتاتے چلیں کہ امریکہ سمیت دنیا کے کئی ایڈوانس دیشوں کے اندر ایسے بہت سارے کمپٹیشنز ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں کہ جہاں پر دنیا کے الگ الگ علاقوں سے اس فیلڈ کے ماہر نوجوانوں کو بلایا جاتا ہے اور پھر ان کو چیلنج دیا جاتا ہے کہ اگر وہ دنیا کے سب سے مشہور اور سب سے طاقتور سافٹ ویئرز یا پھر الگ الگ طرح کی ڈیوائسز کے اندر کوئی کمی ڈھونڈتے ہیں، کوئی سیندھ لگاتے ہیں، تو پھر ان کو بڑے سے بڑا انعام دیا جائے گا۔ اس طرح کے کمپٹیشنز امریکہ، کینیڈا یا اس طرح کے باقی دیشوں میں لمبے وقت سے ہوتے آ رہے ہیں۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان سبھی کمپٹیشنز میں چائنیز لڑکے بھی نہ صرف بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے آئے تھے بلکہ جو ونرز کی لسٹ ہوا کرتی تھی ان میں بھی زیادہ تر چائنیز ہی نظر آتے تھے۔ مطلب چائنیز ہیکرز نے ہی دنیا کو اپنا دیوانہ بنا رکھا تھا۔ ان کمپٹیشنز میں زیادہ تر چائنیز کا ہی جلوہ نظر آتا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرا اور پھر سال آیا 2017 کا۔ اس کے بعد اچانک سے کچھ ایسا بدلاؤ دکھا کہ جو شاید پہلے کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا۔ وہ بدلاؤ یہ تھا کہ اس طرح کے سارے کمپٹیشنز پر راج کرنے والے جو چائنیز ہیکرز تھے وہ اچانک سے کہیں غائب ہو گئے۔ ہیکنگ کی دنیا میں انٹرسٹ رکھنے والے لوگ حیران اور پریشان تھے کہ آخر یہ جو چائنیز ہیکرز ہیں یہ گئے تو گئے کہاں؟ لیکن حیران اور پریشان رہنے والے ان عام لوگوں کے علاوہ بھی یہاں پر کوئی تھا کہ جو سب سے زیادہ پریشان تھا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود امریکہ تھا۔ اس طرح کے کمپٹیشن سے اچانک سے چائنیز ہیکرز کا پوری طریقے سے غائب ہو جانا امریکہ کو ہی سب سے زیادہ پریشان کر رہا تھا، اور اس کو شک ہو چکا تھا کہ ہو نہ ہو کچھ تو ضرور گڑبڑ ہے۔ اور اس کا یہ شک صحیح بھی نکلا، کیونکہ کچھ وقت کے بعد ہی دنیا کے سامنے یہ خلاصہ ہوا کہ جو چائنیز ہیکرز ہیں وہ خود سے غائب نہیں ہوئے ہیں، بلکہ جو چائنا کی گورنمنٹ ہے اس نے اس بات پر پوری طریقے سے بین لگا دیا ہے کہ اس کے ہیکرز باہر کی دنیا کے کسی بھی کمپٹیشنز میں جا کر حصہ لیں اور اپنی یہ جو یونیک قابلیت ہے، اپنا یہ جو ہنر ہے، یہ باقی دنیا کو دکھائیں۔ چائنا نے صرف بین ہی نہیں لگایا بلکہ اپنے یہاں پر ایک نئے کمپٹیشن کی شروعات کی جس کا نام رکھا گیا ٹیانفو کپ، جس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ جتنے بھی چائنیز ہیکرز دنیا بھر کے الگ الگ کمپٹیشنز میں حصہ لینے جاتے تھے وہ یہاں پر پارٹیسپیٹ کر سکتے تھے، اور اس کی جو پرائز منی رکھی گئی تھی وہ $1 ملین سے بھی زیادہ تھی۔ ظاہر ہے معاملہ بالکل صاف ہو چکا تھا اور امریکہ جیسی تمام بڑی طاقتوں کے کان کھڑے ہو چکے تھے۔ ان کو سمجھ آ چکا تھا کہ چائنا کا ارادہ کچھ اور نہیں بلکہ ان زبردست ہیکرز کی مدد سے اپنی سب سے طاقتور اور خطرناک سائبر آرمی کو کھڑا کرنا ہے۔ نومبر 2018 میں ٹیانفو کپ کا پہلا ایونٹ چائنا کے چینگڈو شہر میں کروایا گیا۔ اس میں ایک بندے نے
लग भग $2 लाख का इनाम जीता, जिसका नाम था की जिनजाऊ, क्योंकि ये बंदा उस कंपटीशन में एक बहुत ही पावरफुल और खतरनाक हैक पकड़ने में कामयाब हो गया था, वो भी किसी और चीज के अंदर नहीं बल्कि एप्पल के मशहूर आईफोन्स के अंदर। इसने अपनी हैकिंग काबिलियत के बलबूते पर आईफोन के अंदर जो पैतरा अपनाया था, उससे अब हो ये रहा था कि सिर्फ एक वेब पेज के जरिए से ये किसी भी आईफोन को कंट्रोल कर ले रहा था। मतलब ये कि आईफोन यूज करने वाला कोई भी बंदा अब चाहते हुए या ना चाहते हुए भी उस वेब पेज तक पहुंच जाता है, या फिर किसी तरीके से जानबूझकर उसको वहां तक पहुंचा दिया जाता है, तो उसका ये पूरा फोन, उसकी ये पूरी डिवाइस उसको पता लगे बिना ही हैकर के हाथ में चली जाती। अब साथियों, बात ये थी कि अमेरिका या बाकी वेस्टर्न देशों में जितने भी इस तरह के कॉम्पिटिशन्स होते आए थे, उनमें होता ये था कि जब भी किसी डिवाइस में या किसी सॉफ्टवेयर में कोई बड़ा हैक पकड़ा जाता था, तो जो हैकर्स होते थे उनको तो इनाम से नवाजा ही जाता था, मगर ये जो प्रॉब्लम सामने आती थी, इसको उसी कंपनी को सेंड कर दिया जाता था, भेज दिया जाता था, ताकि वो कंपनी इस पर गौर करे और इस प्रॉब्लम को अगले अपडेट में सही कर ले। अब ऊपर से देखा जाए तो चाइना में कंपटीशन करवाने वाले लोग भी यही करने जा रहे थे। मतलब उनके मुताबिक अगर हैक माइक्रोसॉफ्ट में पकड़ा जाएगा तो माइक्रोसॉफ्ट को भेजा जाएगा, एप्पल में पकड़ा जाएगा तो एप्पल को भेजा जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक फर्क था, और वो फर्क ये था कि ये जो चाइना के जबरदस्त हैकर्स की मदद से हैक पकड़े जा रहे थे, वो डायरेक्ट कंपनीज को नहीं भेजे जा रहे थे, बल्कि पहले चाइनीज गवर्नमेंट को भेजे जा रहे थे, क्योंकि उनके मुताबिक फिर चाइनीज गवर्नमेंट ही इन तमाम चीजों को कंपनीज को भेजती। लेकिन बस यहीं पर मामला गड़बड़ा गया, क्योंकि फिर वो हुआ जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पहले तो सिर्फ 2 महीने के बाद ही, मतलब जनवरी 2019 में आईफोन की तरफ से अपडेट रिलीज किया गया, जिसमें बड़ी ही खामोशी के साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया, उस पूरे मामले को सही कर दिया गया कि जिसको चाइना के कंपटीशन में कीजुन ने ढूंढा था। लेकिन असली चौंका देने वाला खुलासा तो ठीक 7 महीने के बाद, मतलब अगस्त 2019 में हुआ, जब गूगल की तरफ से दुनिया के सामने एक रिसर्च पेश की गई। गूगल ने इस रिपोर्ट के जरिए से दुनिया के आम लोगों को बताया कि पिछले कुछ वक्त से ये नोटिस किया गया है कि आईफोन पर बड़े लेवल पर हैकिंग चल रही है। मतलब बड़े लेवल पर आईफोन यूज करने वाले लोगों की निगरानी की जा रही है। गूगल ने अपनी इस रिपोर्ट के अंदर उन 5 खास तरीकों को, या आप कहिए कि उन 5 पर्टिकुलर हैक्स को भी मेंशन किया कि जिनके जरिए से ही इस बड़े लेवल की हैकिंग को अंजाम दिया जा रहा था। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि मेंशन किए गए इन 5 हैक्स में से एक हैक वो भी था कि जो चाइना के उसी कंपटीशन में कीजुन ने ढूंढा था। मतलब कीजुन का ढूंढा हुआ वो पैतरा हैकिंग के लिए बड़े लेवल पर इस्तेमाल हो रहा था, मगर सवाल ये था कहां पर इस्तेमाल हो रहा था, कौन इस्तेमाल कर रहा था और किस पर इस्तेमाल कर रहा था। अब इन सवालों के जवाब गूगल की इस रिपोर्ट में तो नहीं थे, लेकिन इस रिपोर्ट के थ्रू ऑलरेडी दुनिया को इतना सब कुछ पता चल चुका था कि दुनिया के अलग अलग जर्नलिस्ट ने फिर आपस में चीजों को कनेक्ट किया और इन तमाम सवालों के जवाब जल्द ही ढूंढने में कामयाब हो गए। जवाब ये मिला कि जो इस्तेमाल कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि चाइना की गवर्नमेंट थी, और जिनके ऊपर इस्तेमाल हो रहा था वो चाइना में रहने वाली ही एक कम्युनिटी, मतलब के वीगर मुसलमान थे। वैसे दोस्तों, चाइना में रहने वाले उइगर मुसलमानों की कहानी तो आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी। ये दरअसल चाइना का एक माइनॉरिटी ग्रुप है कि जो उसके शिनजियांग के इलाके में रहता है, और इनकी नस्ल और इनके रिलीजन की वजह से चाइनीज गवर्नमेंट इनके ऊपर पिछले कई सालों से जुल्म और सितम कर रही है। पिछले एक लंबे वक्त से इस तरह की लगातार रिपोर्ट्स आती ही रही हैं, जिससे ये साफ पता चलता है कि चाइना की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो हर वो हथकंडा अपना रही है कि जिसके जरिए से इन लोगों को इनके अपने रिलीजन, मतलब के इस्लाम से दूर कर सके, या फिर इनकी जो नस्ल है उसको कमजोर कर सके। बड़ी तादाद में उइगर मुसलमानों को बिना किसी जुर्म के डिटेंशन कैंप्स के अंदर बंद रखा गया। वहाँ पर इनको अलग अलग तरीके से टॉर्चर करने की खबरें भी आती रही। बाकी जो लोग अपने अपने घरों में भी रहते हैं उनके ऊपर भी हर वक्त निगरानी रखी जाती है। अब वो जो उस दौर में चाइना के अंदर बड़े लेवल पर आईफोन की हैकिंग हुई थी, वो दरअसल उसी जुल्म सितम का एक हिस्सा था, बल्कि ये कह सकते हैं कि एक प्रोसेस था कि जो जुल्म सितम चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से उइगर मुसलमानों के ऊपर होता आया है। उस हैकिंग के जरिए से इस बात पर नजर रखी गई थी कि उइगर मुसलमानों के मोबाइल में किस तरह का कंटेंट है, मतलब वो लोग किस तरह की चीजें देख रहे हैं और किस तरह की चीजें सुन रहे हैं। कहीं उनके फोन में कोई रिलीजियस, मतलब के मजहबी कंटेंट तो नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ भी होने पर उन लोगों को फौरन सजा दी जाती थी। वर्थ नोटिसिंग बात यह भी है कि चाइना ने
इस चीज का इस्तेमाल सिर्फ उइगर मुसलमानों पर ही नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट या बाकी एक्सपर्ट्स के खिलाफ भी किया कि जो चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते रहते हैं या फिर उसको अलग अलग तरीकों से क्रिटिसाइज करते रहते हैं। खुद एप्पल ने भी इस बात को माना था कि 2 महीने तक लगातार बड़े लेवल पर इस हैक के जरिए से हैकिंग की गई थी और ये वही वक्त था कि जब कीजुन ने चाइना के अंदर इस हैक को ढूंढा था, मतलब कि कंपटीशन जीता था। अब तो चाइना की तरफ से शुरू किया गया वो कंपटीशन मतलब कि टियानफू कप अपने 8वें साल में एंटर कर चुका है और अलीबाबा, टॉपसेक जैसी चाइना की जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं उनकी तरफ से इसको स्पॉन्सर किया जा रहा है। मगर जैसे जैसे ये टियानफू कप पुराना होता जा रहा है वैसे वैसे अमेरिका की परेशानी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अमेरिकन एक्सपर्ट्स लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इस कंपटीशन में जितने भी लोग हिस्सा लेते हैं या जितने भी लोग इसको ऑर्गेनाइज करवाते हैं उन सभी का अमेरिकन एक्सपर्ट्स को सीधे तौर पर चाइनीज गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन नजर आ रहा है। मतलब ये कंपटीशन सिर्फ कंपटीशन ही नहीं है बल्कि इसके जरिए से चाइना फ्यूचर में एक बड़ी जंग के लिए अपने हैकर्स की एक खतरनाक टीम तैयार कर रहा है और इसका असर अब धीरे धीरे नजर भी आने लगा है, क्योंकि 2024 में ही अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट का डेटा लीक हुआ था और बाद में पता चला था कि यूएस के ट्रेजरी डिपार्टमेंट में सेंध लगाकर सेंसिटिव डेटा उड़ाने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि चाइनीज गवर्नमेंट के यही खतरनाक हैकर्स थे। इतना ही नहीं, 2024 में ही अमेरिका की लगभग 9 टेलीकॉम कंपनीज के नेटवर्क को चाइनीज हैकर्स की तरफ से टारगेट किया गया था। 2021 में तो इन लोगों ने अमेरिका के पानी और एनर्जी फिल्ट्रेशन सिस्टम को ही टारगेट कर डाला था। 2023 में भी गुआम में अमेरिका के मिलिट्री बेस पर ऐसा ही एक अटैक हुआ था जिसका जिम्मेदार बाद में इन्हीं चाइनीज हैकर्स को समझा गया था। कहने का मतलब ये है कि इस तरह के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और अमेरिकन एक्सपर्ट्स तो ये भी दावा कर रहे हैं कि चाइनीज हैकर्स की खास बात ये है कि जब भी वो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हैं, किसी कंपनी को टारगेट करते हैं तो उसके सिस्टम में बड़ी ही खामोशी के साथ एक लंबे वक्त तक के लिए बैठे रहते हैं और ये लंबा वक्त गुजर जाने के बाद जब एक दिन अचानक से उनको लगता है कि अब राइट टाइम है तभी वो अपना काम करके निकल लेते हैं। ये सारी ही चीजें क्लियरली बता रही हैं कि चाइना साइबर वॉरफेयर की सिर्फ तैयारी ही नहीं कर रहा है बल्कि शायद वो काफी हद तक तैयार हो भी चुका है। तैयार हो चुका है उस फील्ड में कि जिसमें न तो मिसाइल चलाई जाती है और न ही एयर स्ट्राइक की जाती है बल्कि सिर्फ कंप्यूटर पर बैठ पल भर के अंदर बड़ी से बड़ी ताकत का चक्का जाम कर दिया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो के जरिए से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।